So, hello and welcome back to my channel Average Aspirant. My name is Aditya Arvind Pandey and I've appeared for UPCCSE Interview 2025. Uh, a brief introduction about myself. I've exhausted all my attempts and I've cleared the mains for the first time, and then this is my first and last interview. So, in the previous video, we talked about some general things about my journey. So in this video, as promised in the earlier video, that we'll be discussing some few important topics from the mains point of view. So we'll be starting with GS4 in the next video, and in the coming videos, I'll be covering GS3, GS2, few parts of GS2 as in IR की IR का जो भी current affairs का related material होता है, and apart from that, in GS1 I'll be covering Indian society. By covering, I mean that I'll be sharing my notes, कैसे मैंने उन्हें बनाए और कैसे मैंने उन्हें बार बार रिवाइज किया है, and how I could produce them well in my answers. So that's the general agenda. I'm not here to teach, and I'm not here to teach. I'm not a good teacher also, but I thought I should share my experience to you all. So in this video, the agenda of this video is to talk about five mistakes that have cost me, like I've been in the journey for like 7 8 years. The five mistakes that have cost me five attempts and I wasted my 6 years. ठीक है, क्योंकि in the earlier 6 years I couldn't clear the pre itself. In my final attempt I reached to the interview stage. So let's begin. So I don't have a notepad. I've written it down on my paper. So let's begin with the first mistake. The first mistake that everyone faces in the start of the preparation is the euphoria about that examination. ठीक है, आप किसी को भी बता दो कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, तो 22 से 21 साल की उम्र होती है तो बहुत आपको मोटिवेट कर देता है, बट एज द ईयर पासेस डाउन यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. So you feel the burden starts. So burden is real that time. ठीक है, तो यूफोरिया अबाउट द एग्जामिनेशन इज वेरी, लाइक इट्स वेरी ह्यूज. ठीक है, आपको ऐसे सोसाइटी में बना रखा है कि आप ये एग्जाम निकाल दोगे तो बहुत ऊपर योर स्टेटस विल बी एलिवेटेड. सो नथिंग इज लाइक दैट. माय फ्रेंड्स आर इनटू सर्विस now, and I know that they were a normal people before clearing the examination, and they are normal people after clearing the examination. ठीक है, so there are various myths about this examination. ठीक है, it's very tough. ठीक है, everything under the sun is important. Only geniuses are able to clear the examination. So all those sort of myths are, I mean, they are really a waste of time, and they're really fake. ठीक है, nothing sort of that works when you really put in all the efforts. ठीक है, so this examination is for a layman. ठीक है, who is ready to stay consistent, who is ready to परसिवरेंस जिसके अंदर है, तो मेरे हिसाब से और कंसिस्टेंट है जो, वो बंदा ये एग्जाम को निकाल सकता है. ठीक है, I've seen many people clearing it. ठीक है, they are from a normal background per se. ठीक है, कोई आईआईटी कोई आईएम कुछ भी नहीं, बट दे स्टिल मैनेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो यूफोरिया है. तो रिगार्डिंग दैट यूफोरिया, यू डेल्व इनटू द अननेसेसरी जार्गन्स. ठीक है, आपको बता दिया गया है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज इंपॉर्टेंट, सो यू स्टार्ट reading everything which is not relevant from the examination point of view. ठीक है, you keep on multiplying your sources and the burden keeps on adding up. ठीक है, in the end you are not able to revise those things, and finally uh, प्रीलिम्स में पेपर सॉल्व नहीं होता है, मेंस में आंसर राइटिंग हो ही नहीं जाती है क्योंकि कंटेंट इतना अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाया. सो ऑल दोस यूफोरिया, ऑल दोस अननेसेसरी जार्गन्स हैव वेस्टेड माय इयर्स, एंड दे विल वेस्ट फर्दर इयर्स ऑफ future aspirants will be appearing for the examination. So my job is to tell you that do not, मतलब ये एग्जाम की यूफोरिया में मत आइए. जस्ट टेक इट एज एन बोर्ड एग्जाम. यू हैव टू स्टडी. द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इफ यू आर स्टडिंग यू हैव टू कम फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो that's the first mistake that I did and many of the aspirants will do is like आप वो एग्जाम की यूफोरिया में आ जाओगे. ठीक है, you are into that bubble, you are into that UPSC bubble, and you are not able to come out of that. So that's the first mistake. Second and the most prime mistake that I did, and that many 99% of the aspirants do, they are not writing those answers. ठीक है, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, and if you are not writing answers, believe me, even if you write 6 mains, you will not be able to clear the examination, because the entire examination, तो सबसे मेन एग्जामिनेशन है, दैट इज मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है. ठीक है, अब बिफोर यू गो टू द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. यू हैव टू घर पे अकेले बैठ के आंसर राइटिंग करनी है. ठीक है, आई टेल यू माई शेड्यूल. आई यूज टू वेक अप, आई यूज टू राइट 5 आंसर्स. I have before examination I have written 23 tests including my optional test, and 1 year before the examination I've been continuously writing my answers because I knew that it was my last attempt. I had to give all I had. ठीक है, so from 2024 अक्टूबर से लेके 2025 मेंस तक मैंने हर दिन आंसर राइटिंग की है, प्रीलिम्स के कुछ 1 2 महीना छोड़ के. ठीक है, ठीक है. फिर थर्ड मिस्टेक दैट आई वांट टू पॉइंट आउट इज नोट्स मेकिंग एंड ऑप्शनल कवरेज. ठीक है, वी ऑलवेज लीव ऑप्शनल की, जब हमारा प्री निकलेगा तब हम ऑप्शनल करेंगे, बट लेट मी टेल यू, विदाउट कवरिंग योर ऑप्शनल you are not going to clear this examination because optional has a 500 mark weightage,
एंड आपको ऑप्शनल इन डेप्थ कवर करना है। मतलब इन डेप्थ इन द सेंस कि कोई पीएचडी लेवल की तैयारी नहीं करनी है, बट कीपिंग द सिलेबस इन माइंड, ठीक है, कीपिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन माइंड, यू हैव टू कवर योर ऑप्शनल। जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है फ्रॉम टॉप टू एंड, यू हैव टू कवर योर ऑप्शनल टू द पॉइंट। तभी आपको टेस्ट में भी नंबर आएंगे, तभी आपको एग्जाम में ऑप्शन में भी नंबर आएंगे, ठीक है। और नोट्स मेकिंग आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप कोई प्रहार पढ़ के चले जाओगे, आप साथ ही है इसका जीएस थ्री पढ़ के चले जाओगे, आपका जीएस थ्री कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका कुछ कवर नहीं होगा जब तक नोट्स पढ़ते रहोगे। आपको नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे। मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। आई हैव मेड नोट्स फॉर इंडियन सोसाइटी, आई मेड नोट्स फॉर जीएस टू आईआर, आई मेड नोट्स फॉर जीएस थ्री, इंटायर जीएस थ्री। आई फॉलोड साथी एज मटेरियल फॉर जीएस थ्री, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं उनके नोट्स पढ़ूं, तो इसलिए उनका लेक्चर देखता था और मैं पूरे नोट्स मैंने खुद से बनाए। जीएस फोर के नोट्स मैंने पूरे खुद से बनाए। ऑप्शन के नोट्स मैंने पूरे खुद से बनाए, ठीक है। ऑप्शनल के नोट्स मैंने बहुत सोर्सेज से बनाए हैं। काफी टॉपर्स के नोट्स देखे हैं मैंने, ठीक है। का मैम के नोट्स देखे हैं। आई हैव कवर्ड माय ऑप्शंस फ्रॉम शुभ्रा रंजन मैम, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो नोट्स मेकिंग इज द थिंग फॉर मेंस, ठीक है। विदाउट मेकिंग नोट्स, आई मीन इफ यू आर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, देन ईदर यू आर वेरी वे टू स्मार्ट, ठीक है, और यू आर वे टू वेल रेड, तब आपका वो निकल रहा है। बट मेरे लिए, फॉर एन एवरेज एस्पिरेंट लाइक मी, नोट्स मेकिंग इज मस्ट, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में, फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास स्टैंडर्ड मटेरियल है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, यू कैन रीड, यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। बट मेंस के लिए आपके पास इतना कुछ लिखना है आपको। यू नीड टू रिमेंबर कोड्स, यू नीड टू रिमेंबर स्टैट्स, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर सम डेटा, यू नीड टू हैव अ कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड एंड इंट्रोडक्शन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो नोट्स मेकिंग इज द थिंग फॉर मेंस एंड ऑप्शनल, ठीक है। तो फोर्थ मिस्टेक कि प्रीलिम्स के लिए मेरे को 5 अटेम्प्ट लग गए और मेरे से प्रीलिम्स लिखना लिया, और छठवें अटेम्प्ट में मेरा फॉरेस्ट भी निकला है, ठीक है। तो एक गलती मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो मेरे को प्रीलिम्स से हमेशा फील हुई, कि वो एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड मेरे अंदर कभी नहीं आ पाया स्टार्टिंग के 5 अटेम्प्ट में, ठीक है। वो एप्टीट्यूड आपको अंदर लाना बहुत जरूरी है, कि आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हैं, 25% प्रोबेबिलिटी हर हर क्वेश्चन को सही करने की है, दैट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, एंड आंसर आपके सामने और आपको उसको सॉल्व करना है। तो बेसिक थिंग जो एप्टीट्यूड के, एक आपकी एप्टीट्यूड होती है और एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अप्रोच करने की एप्टीट्यूड होती है। तो मेरी जो एप्टीट्यूड थी कि माय एक्यूरेसी इज वेरी लेस, इफ आई एम अटेम्प्टिंग 40 क्वेश्चंस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें 10 तो गलती होने वाले हैं, ठीक है, कि एग्जाम क्वेश्चंस का नेचर ही ऐसे है। तो मेरा एप्टीट्यूड, जैसे मैंने फाइंड आउट किया, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 95 to 100 क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। So let me talk about my aptitude. So I used to attempt 90 to 100 questions in the prelims examination, क्योंकि मेरे को पता था कि इसमें से 25 से 30 सवाल गलत ही होने वाले हैं। So that was my approach. Second aptitude जो आपका पेपर से रिलेटेड आता है, कि you need to understand the language of the paper, you need to understand what examiner is asking, ठीक है, and you need to understand कि कितने एक्सटेंट तक आपको किसी चीज को कवर करना है। तो ये पूरा मैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करके ही मुझे आया है, कि सॉल्विंग पीवाईक्यू, सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सॉल्विंग ईच एंड गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन, ठीक है। तो बाय द यही होता है पीवाईक्यू कवरेज मेरे हिसाब से, rather देन आप पूरे क्वेश्चन को रट्टा मार के चले जाओ और आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता है, नो वन केयर्स अबाउट दैट, ठीक है। इवन आई डोंट वांट टू नो इफ यू नो आंसर और नॉट, ठीक है। आई वांट टू अंडरस्टैंड, रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि वो आंसर तक आप पहुंचे कैसे, और जो 3 ऑप्शन गलत हैं वो गलत क्यों हैं। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ पीवाईक्यू सॉल्विंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक बहुत कम लोग करते होंगे, ठीक है। The stats also say that 99% of the people are going to fail in this examination. So I'm pretty sure कि 99% of the people are not doing it. ठीक है, even I didn't do it till the first 5 attempts. मैं prelims के PY को solve करके जाता था, बस उसको solve करके आपको लग रहा है कि sense of satisfaction आ रहा है, but that is not the case. You need to go into the depth कि कहाँ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और जो सही भी हो रहा है, जो तुक्के से सही हो रहा है, उसको भी जानना है, जो गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है, कहाँ से क्या गलत हो रहा है, ये आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। और कितने एक्सटेंट तक किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये भी पीवाईक्यू से पता चल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे से हमेशा गलती हुई कि आई बिन दैट एस्पिरेंट जो हमेशा लगता था कि ये टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेता हूँ, अनिरुद्ध शेट्टी के ऐसे पढ़ लेता हूँ तो शायद उसके जैसे ऐसे लिख लूंगा, टीना दावी के ये पढ़ लेता हूँ, शक्ति दूबे के ये पढ़ लेता हूँ, बट दैट इज नॉट द केस, ठीक है। इट इज अ पर्सनलाइज्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। जब तक आप उसको, यू डोंट टेक इट टू द इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सेंस पे जब तक आप उसको नहीं लेके जाओगे, तब तक यू आर नॉट एबल टू, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर नहीं आएगी बेसिकली, ठीक है। तो मेरा जो हमेशा लास्ट 2024 से मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, 2025 तक पूरे 1 साल मैंने आंसर राइटिंग की है। तो व्हाट आई फेल्ट इन दिस प्रोसेस, कि आपको एक अपना मतलब यू नीड टू डेवलप योर ओन स्टैंडर्ड ऑफ हाउ यू राइट द एग्जाम, ऑफ हाउ यू राइट द आंसर्स, ठीक है। कि हर एक क्वेश्चन को यू जस्ट कैन नॉट गो इनटू द टॉपर्स कॉपी एंड सी दैट कि ये ऐसे लिख रहा है एंड आई विल जस्ट ट्राई टू कॉपी एंड इम्प्लीमेंट इन माय माय आंसर्स, ऐसे नहीं होता है। आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसे लिखने का जो अप्रोच होता है, यू नीड टू डेवलप योर ओन अप्रोच फॉर ऐसे,
ठीक है, खासकर मैं एसए, एथिक्स और ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ कि ये तीन सब्जेक्ट के लिए आपको एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हो, केस स्टडी में आप केस स्टडी कैसे लिखते हो, ठीक है, कहाँ कहाँ स्टेक होल्डर लिखने, कहाँ कहाँ नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है केस स्टडीज में भी। तो एवरीथिंग इज पर्सनलाइज्ड, यू नीड टू मिक्स एंड मैच, यू नीड टू मतलब अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चंस, यू नीड टू सॉल्व पीवाईक्यूज, यू नीड टू राइट सम टेस्ट, ठीक है, यू नीड टू शो अप बेसिकली। ठीक है, तब जाके एक वो पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी आएगी, आप खुद को समझ पाओगे। तो जहां तक मैं समझ पाया था कि आंसर राइटिंग में तो मेरे हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा था कि आई एम डूइंग सम ब्लंडर्स, क्योंकि बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल मेंस एग्जामिनेशन आई हैड अराउंड 740 टू 750 मार्क्स, 748 मार्क्स जो मेरे टेस्ट में बन गए थे। तो आई न्यू कि चलो आंसर राइटिंग में इतना ब्लंडर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं भाई जीएस 1 के आंसर ऐसे लिखूंगा सोसाइटी के, और उसको मैं रिफाइन करते गया। मैंने 3 से 4 टेस्ट दिए थे जीएस 1 के फुल लेंथ, और मैं उसको रिफाइन करते करते एक फाइनल जो मेरा आउटकम था कि मैं समझ गया कि मैं ऐसे लिखूंगा। जीएस 2 में मेरे को था कि मैं आईआर के आंसर में ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाऊंगा। जीएस 3 में भी ऐसे था कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है तो ये कमिटी लिखनी है, ठीक है। और जीएस 4 में भी आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है और केस स्टडीज को ऐसे अप्रोच करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर एसए, एसए से ही मेरे हिसाब से अगर एसए में अच्छे नंबर फेच हो जाए तो आपको सोने पे सुहागा ही है। अगर आपको 130 140 नंबर आते हैं ऐसे में तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे भी मैंने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, ब्लू पेन से लिखूंगा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करूंगा, कौन से मेरे को एग्जांपल्स देने हैं, और बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है मेरे एस्से का, ठीक है, जो इन डेप्थ जो एग्जामिनर चाह रहा है क्या मैं उसे दे पा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक पर्सनलाइज और एक कस्टमाइज स्ट्रेटेजी हमेशा आपकी होने वाली है, एंड नो टॉपर विल टीच यू, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी उसके लिए वर्क करिए, शायद आपके लिए वर्क करे या ना करे। ठीक है, तो समिंग अप दिस सेशन, so five mistakes that have cost me 5 attempts and 6 years. First is delving into the euphoria of this examination. ठीक है, everything under the sun is important and unnecessary jargon that you fall into. ठीक है। सेकंड इज नॉट आंसर राइटिंग, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, नॉट राइटिंग आंसर्स, तो मेरे हिसाब से यू आर इन द मतलब कभी ही नहीं निकलने वाला है। मे बी यू आर दैट एस्पिरेंट सो यू विल बी एबल टू क्लियर द प्री एग्जामिनेशन, और यू विल बी अटेम्प्टिंग द साइकिल ऑफ मेंस एंड मेंस, ठीक है। बट आपका मेरे हिसाब से इफ यू आर नॉट डूइंग आंसर राइटिंग, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, पकड़ नहीं है आंसर राइटिंग में, तो वो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, थर्ड इज नोट्स मेकिंग एंड ऑप्शनल कवरेज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। फोर्थ इज प्रीलिम्स के लिए एप्टीट्यूड डेवलप करना, जो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके ही आने वाला है। एंड फिफ्थ इज एक इंडिविजुअलिस्टिक कस्टमाइज और एक पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी आपकी जब तक नहीं रहेगी तब तक मेरे हिसाब से ये एग्जाम तो नहीं निकलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इट मस्ट बी सम हार्श ट्रूथ, बट इट इज व्हाट इट इज, दैट इज इट। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।